नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के नौबाद में स्थित गवर्नमेंट फर्स्ट एड कॉलेज में जनपद उत्सव मनाया गया। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पत्रकार रवि भूसांडे पर हमला किए जाने की निंदा करते हुए कर्नाटक भीमसेना ने बीदर में शुरू किया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। हमारे लिए समय सीमित और लक्ष्य बड़े। पहलगाम अटैक पर आक्रोश के बीच पीएम ने दिया गहरा संदेश। लश्कर-ए-पाकिस्तान कांग्रेस बीजेपी के गौरव भाटिया ने पीएम मोदी पर गायब वाले तंज को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साइबेरिया में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का किया अनावरण। पाक ने बंद किया एयरस्पेस भारतीय विमानों की नो एंट्री। अब समाचार विस्तार से। सोमवार 28 अप्रैल को बीदर के नौबाद में स्थित गवर्नमेंट फर्स्ट एड कॉलेज में जनपद उत्सव मनाया गया, जिसमें विभिन्न कॉलेजों के छात्र और छात्राओं ने भाग लिया और जनपद कला का प्रदर्शन किया और सभी का मनोरंजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर जयश्री प्रभा ने की, जबकि मुख्य अतिथि शंभुलिंग वालदोडी, शंकर गानकुंडा, राजकुमार आलूरे, डॉक्टर एलिसा देवदास के अलावा स्टाफ और छात्रों के अलावा भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर स्टाफ मेंबर्स ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ನೌಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಜಾನಪದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಬಹು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ BCom, BSc, BA ಮತ್ತು PG ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾದಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟ್ಟುವ ಇದನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೇರುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ರಾಶಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರು। ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶಂಭುಲಿಂಗ್ ವಾಲ್ದೊಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಲಾವಿದರು ಬಂದಿದ್ದರು। ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಜಯಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು। ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲೂರಿ ಅವರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು। ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲೀಸ್ ಸರ್ ಸಹ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದರು। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು। ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು। ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡದ ವಿಭಾಗದ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದರು। ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರು। ಅನೇಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು। ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು। ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆಪಡುತ್ತೇನೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್, ಬೀದರ್। ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದ್ದಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಒಕ್ಕೂಡಿ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಸಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬಂದು ಹಾಜರಿಯಾಗಿದ್ದರು। ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಸಹ ತಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು। ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು। ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾವು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು। ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಶಂಭುಲಿಂಗ್ ವಾಲ್ದೊಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು। ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ CDC ಮೆಂಬರ್ ಆದಂಥ ML ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ। ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಕಾಲೇಜು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡೋದಾಗಲಿ
ಆಮೇಲೆ ಬೀಸೋದಾಗಲಿ, ಕುಟ್ಟೋದಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಳಮಾಸೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ನ ಹಿಂದಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾನಪದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟದಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು ಮಿತ್ರರವರಿಗೆ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವೃಂದದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವ್ರ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂಥಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ आज मंगलवार 29 अप्रैल को बीदर से गुलबर्गा जाने वाली हाईवे पर हवा मलिनाथ महाराज निर्गुड़ी ने हमेशा की तरह भक्तों में प्रसाद के रूप में फल वितरित किए। इस अवसर पर भारी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे और दर्शन के साथ साथ प्रसाद प्राप्त किए और आशीर्वाद लिया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक राज्य दक्षिणपंथी जाति एवं संबुद्ध जातीय आंतरिक आरक्षण संघर्ष समिति बीदर द्वारा बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। यह प्रेस मीट कर्नाटक राज्य दक्षिणपंथी जातीय एवं संबंधित जातीय आंतरिक आरक्षण संघर्ष समिति बीदर के मानद अध्यक्ष डॉक्टर काशीनाथ चलवा विजय मालगे द्वारा आयोजित की गई। इस प्रेस मीट को संबोधित करते हुए कर्नाटक राज्य वामपंथी जातीय एवं संबंधित जातीय आंतरिक आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष मारुति बौद्धे, उपाध्यक्ष विट्ठल दास प्राज्ञा और महासचिव महेश गोनालकर ने सरकारी अधिकारियों से कहा कि जब वे आंतरिक आरक्षण के लिए जाति सर्वेक्षण के लिए आए तो उपजाति की परवाह किए बिना अपनी मूल जाति लिखे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ಈ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಎನ್. ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಏಕಸದಸ್ಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 5ನೇ ಮೇ ಇಂದ 17ನೇ ಮೇವರೆಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿರುವ 101 ಜಾತಿಗಳ ಒಂದು ನಿಖರವಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಚಳವಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 1ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಂತು. ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಆಶೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾದಿಗ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಹೊಲೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲೆಯರಿದ್ದಾರೆ, ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಿದ್ದಾರೆ. वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पत्रकार रवि भूसांडे पर हमला किए जाने और पत्रकार पर झूठे मुकदमे दर्ज करने की निंदा करते हुए कर्नाटक भीमसेना ने बीदर शहर में जिला प्रभारी मंत्री के कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। इस अवसर पर कर्नाटक भीम आर्मी के प्रदेश सचिव विष्णुवर्धन बालदोडी, जिला अध्यक्ष नागसेन बानेरा, युवा इकाई अध्यक्ष बाबूराव वरीदाबादे, वैजनाथ सूर्यवंशी, अम्बरीश कुद्रे, अमृतराव मुतंगीकर, श्रीकांत भवानी और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए सर, तो लास्ट अप्रैल 15 को जो हमारे रिपोर्टर है रवि भूसांडे, उनके ऊपर जानलेवा हमला करे जैसा करे, वो एक्चुअली फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं, वो राउडी शीटर होना चाहिए। ऑलरेडी सभी पब्लिक के सामने उतना मारपीट करके उसको गाड़ी में ले जाको तुम्हारा कास्ट कौन सा है,
तेरे को जान से मार तो बोल के जान से धमकी दिया बोल के सुनने में आया सा है। हम दिए थे 4 जने के ऊपर FIR हुआ था, वो मुकदमे में सिर्फ एक ही जने को सस्पेंड करा है, अभी 3 जने को सस्पेंड नहीं करे। ये क्यों होना बोल के करे, क्या इसके पीछे कौन सा तो पॉलिटिकल षड्यंत्र है बोल के आज हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर उसको जवाब देना चाहिए। नहीं तो आज से हम अनिर्दिष्टवादी बोले तो हम कंटिन्यूसली जब तक ये फॉरेस्ट ऑफिसर सस्पेंड नहीं हो जाते तब तक हम लोग या धरना पे बैठे रहेंगे, वो भी ना कुछ खाए बिना ना कुछ पिए बिना। ये हमारा उपवास सत्याग्रह है, हम पानी भी नहीं पी सकते जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलता, तब तक पानी भी नहीं पियेंगे बोल के पूरा हमारे संगठन के तमाम लोग आके आज हाथ जुड़े हुए। मैं तमाम लोगों को पहले बात तो मैं सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब तक रवि को इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है सर। ये होने इलाके के पदाधिकारी सिब्बंदी लोगों ने पत्रकर्ता रवि मुसंडी के ऊपर हमला किया है। ये पत्रकर्ता बंधु ये भारत देश के और डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ रहते होते हैं, तो अगर चौथे स्तंभ पे हमला होने लगा तो देश में डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, ऐसा साबित होता है। दूसरी बात, इस बीदर जिले में पहली बार मुख्यमंत्री आ रहे थे, तो मुख्यमंत्री आने के बाद रवि मुसंडे ने भाई रात में तुम इतनी देर में आके क्यों झाड़े लगा रहे, ऐसा कहने के ऊपर ये उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और उसे जात के नाम पर गाली गलौज करके फॉरेस्ट एम्प्लॉइज लोग 4 लोग थे, वो 4 लोगों को सस्पेंड करने के बजाय एक मुस्लिम समाज के अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। ये जातीयता की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है श्रीमान ईश्वर खंडरे साहब को कि ये खाली मुसलमानों को टारगेट बना के बलि का बकरी न बनाते हुए जितने भी उनके साथ सिब्बंदी है उनको इमीडिएट सस्पेंड करना चाहिए और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रारंभ करके जल्दी से जल्द उनको सर्विस से डिसमिस करने का काम खंडरे करेंगे, ऐसी आशा रखते हुए मैं KP न्यूज़ के चैनल को ये बोलना चाहता हूँ कि इस चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करते हुए रवि मुसंडे को न्याय दिलाने का काम करेंगे, ऐसे में आशा रखता हूँ। मेरा नाम वैजनाथ राव सूर्य। बसपा कल्याण में सिटी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष पर्यटकों की हत्या के विरोध में गांधी चौक से अंबेडकर चौक तक कैंडल मार्च निकाला। इस अवसर पर पूर्व MLC विजय सिंह अजहर, नवरंग अली, नीलकंठ राठौड़, KPCC मेंबर रईसुद्दीन गफ्फार, पेशमाम, CMC मेंबर और भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। बसपा कल्याण से संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए KP News 24/7 के साथ। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। संगति ಬುಧವಾರ ಪಹಲ್ಗಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಥರ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲಿಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕ್ವರೆಗೂ ಬಹಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 28 ಜನ ಶಹೀದರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಉಗ್ರರು ಅವ್ರು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಏನು ಅವರು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಏನಂತಾರೆ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರುವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ನುಗ್ಗಿ ಕೊಂತಾರಂದರೆ ಇವರು ಮಾನವರಲ್ಲ, ಇವರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಮಾನವತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಭರತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರು, ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಿವಾಸಿಯವರು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿಗಳು, ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸೆಲ್ಲ
है ना, माता डिग्री, बहुत सारे लोग हमारे अच्छा बात करें। पहली बात, इसमें मजहब का बात ही आता नहीं है ना, ये दो देश के बीच में का झगड़ा है। तो मैं बोलना चाहता हूं, किसी को सफाई देने की जरूरत ही नहीं है, किसी को भी सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। जो भी भारत देश में पैदा है वो भारत माता का बेटा है और हमको फक्र है हम भारत माता में पैदा हुए। तो किसी को कभी भी आज का मैं बोला, मैं बहुत सुना आप लोगों का, अब आप लोग बोले आगे बात, किसी को सफाई देने का जरूरत ही नहीं है, कभी दीजिए मत। ये पूरे हम सब भारतवासी हैं और ये हमारी माँ है। हमारी माँ के हाथ पे कोई भी आएगा तो हम उनके घर में घुस के मारेंगे। अभी बात याद रखिए, ये हर एक नागरिक का फर्ज है, गवर्नमेंट का फर्ज है। हम उनको ज्यादा बोलना नहीं चाहते, लेकिन जो भी हुआ है आपको, हम आपके साथ हैं। इस ऐसे बुरे टाइम पर हम आपके साथ हैं, पूरी के फैमिली के साथ है, पूरे सरकार के साथ है। और आप जाकर पाकिस्तान में हो या किसी और देश में हो, घुस के जो ये मारे हैं उनको पकड़ के वहीं पर चौराहे पे मारना बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनको, आप समझ रहे। तो इसमें और एक बात क्या है, हम बहुत दुख की बात है कि हम लोग इस बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। तो हम लोग सब एक साथ रहना चाहिए और ऐसे टाइम पर हम जो मरे हुए हैं, हम सब क्या भी होगा, लेकिन जो आदमी मर गया वो वापस नहीं आए। तो फर्स्ट हमारा कर्तव्य जो है कि उनके फैमिली मेंबर के साथ, उनके रिलेटिव्स के साथ, उनके जो परिवार वालों के साथ और उनके संबंधियों के साथ हम उनके साथ हैं उनके बताने के लिए हम एक कैंडल मार्च करें। फर्स्ट पॉइंट वो है। तो बाकी सब है और हमको भी विश्वास है 100% हमारा आर्मी जो है, हमको फक्र है हमारे सेना पर, वो 100% आने वाले चंद दिनों में ही घुस के उन लोगों को पकड़ के मार के लेकर आते, उनके 100% गारंटी है। ये बोलते हुए मेरे दो बात खत्म करता हूँ। जय हिंद। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बेलगावी जिले में सीएम सिद्धरामैया की जनसभा के दौरान हुए हंगामा को लेकर भाजपा द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें फिलहाल सिर्फ अखबारों से मिली जानकारी ही है, लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि कुछ भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कांग्रेस की शाल उड़ाकर कार्यक्रम में पहुंची थी। गृह मंत्री ने कहा कि जब अन्य कांग्रेस नेता भाषण दे रहे थे तब कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बोलने लगे, इन महिलाओं ने काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार।
कर्नाटक में भारी बारिश का खतरा देखने को मिला। बता दें कि भारी बारिश के कारण तुमकुरु में एक स्कूल की छत अचानक भर-भरा कर गिर गई। यह है कर्नाटक की तुमकुरु की तस्वीरें, जहां भारी बारिश के कारण गिर गई एक स्कूल की छत। ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदुओं के जनसंहार को लेकर देश में भड़के आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहद गहरा संदेश दिया है। पीएम ने मंगलवार को यूजीएम कॉन्क्लेव में युवाओं को संबोधित करते हुए देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए शिक्षा और तकनीकी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि समय सीमित है और लक्ष्य बहुत बड़े हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी यह बात मौजूदा स्थिति के बारे में नहीं, बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने की उनकी सोच को दर्शाता है। पीएम ने शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने और युवाओं को 21वीं सदी की जरूरतों के लिए तैयार करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मोदी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था देश के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनकी सरकार शिक्षा को आधुनिक और तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने मेक एआई वर्क फॉर इंडिया का नारा देते हुए कहा कि भारत को एआई और हर नई तकनीक में दुनिया का सबसे बेहतर देश बनाना है। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की मांगों के हिसाब से ढाला जाए। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने 29 अप्रैल को कांग्रेस के विवादास्पद पोस्ट की कड़ी निंदा करते हुए इसे बेहद दुखद और चिंताजनक बताया। उन्होंने पार्टी पर अपने दो चेहरे दिखाने और लश्कर-ए-पाकिस्तान कांग्रेस में तब्दील होने का भी आरोप लगाया। यह बेहद दुखद और चिंताजनक है कि भले ही कांग्रेस एक भारतीय राजनीतिक पार्टी है, लेकिन यह लगातार अपने दो चेहरे दिखाती है और लश्कर-ए-पाकिस्तान कांग्रेस में तब्दील हो जाती है। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी की बिना सिर वाली तस्वीर ट्वीट की है। ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है, सर तन से जुदा कांग्रेस की विचारधारा रही है। प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर जारी करके कांग्रेस ने पाकिस्तान को संदेश दिया है। वे कहते हैं कि वे भारत सरकार का समर्थन कर रहे हैं और फिर इस तरह की तस्वीरें जारी करते हैं। पाकिस्तानी कांग्रेस के इस ट्वीट की बहुत सराहना करते हैं। कांग्रेस के नेता इस ट्वीट के बारे में क्यों नहीं बोलते? गौरव भाटिया ने कहा। देखिए, बहुत ही दुखद है और चिंताजनक है कि कांग्रेस पार्टी है तो भारत की राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, अपने दोहरे चरित्र को यहाँ पे जग जाहिर करती है और लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस बन जाती है। ये जो तस्वीर है, ये सारे देशवासी देखेंगे और आज कांग्रेस की थूथू हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा दिखा दिया, और वो भी किस वक्त? वो भी तब जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सख्त एक संदेश दिया है आतंकी मुल्क पाकिस्तान को कि नेस्त नाबूद कर देंगे ऐसी धरती को जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और भारत में आतंकवादी हमला करवाता है। इस वक्त यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के टावर में सिग्नल पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। सर तन से जुदा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है और इसीलिए आप देखिए प्रधानमंत्री जी के ऐसे एक पिक्चर को रिलीज करके कांग्रेस पार्टी ने
पाकिस्तान को संदेश दिया। और साथ में एक बड़ी बात और मैं कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, पाकिस्तान में पाकिस्तानी जनरल कह रहे थे कश्मीर जगलर वेन है, जगलर वेन, और कश्मीर भारत का वो मुकुट, वो सर है जिस पे हर भारतीय को नाज है। ये जो तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स ऑफिशियल हैंडल पे डाली है, इसका एक बड़ा संदेश ये भी है कि कश्मीर को लेके कांग्रेस पार्टी आज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। दिखाने के लिए दांत और हैं, खाने के लिए दांत और हैं। कहते हैं हम समर्थन कर रहे हैं सरकार का, और इस तरह के ट्वीट पोस्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में वाहवाही लूटी जा रही है। आप देखिए, ये पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कांग्रेस का ट्वीट टैग करके क्या लिखते हैं। जो वो लिखते हैं वो सबको शर्मसार करता है, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभा के भारत के साथ खड़ा होना था, आज वो कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान में वाहवाही लूट रही है। वहां के मंत्री, पूर्व मंत्री कांग्रेस में अपना हमदर्द और मित्र और समर्थन ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की 140 करोड़ जनता एक साथ खड़ी है। आज ये सवाल पूछा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं की आलोचना की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विपक्ष द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले यह बताना चाहिए कि पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस पार्टी का सामूहिक संकल्प क्या है। एक तरफ सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम सरकार के साथ है, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और दूसरी तरफ उनके नेता सिद्धरामैया ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनके दूसरे नेता पाकिस्तान से दोष भारत पर मढ़ते हैं। उनके कुछ नेता पीड़ितों को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले यह बताना चाहिए कि कांग्रेस का सामूहिक रुख क्या है। कांग्रेस के गायब पोस्ट पर आगे उन्होंने कहा कि अब यह स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी पीपीपी पाकिस्तान त्रस्त पार्टी बन गई है। न केवल दोनों की स्क्रिप्ट एक जैसी है, बल्कि उनका काम और संस्कृति भी एक जैसी हो गई है। कांग्रेस ने 26/11 में पुलवामा में पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, और अब वे पहलगाम में भी दे रहे हैं। खड़गे जी को पहले कांग्रेस पार्टी को एक स्पेशल सेशन में साथ में बुलाना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी का कलेक्टिव रिजॉल्व क्या है इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले पर, वो देश को बताना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के लोग आते हैं, कहते हैं हम देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनके सबसे बड़े नेता, इनके सिद्धरामैया जी बोलते हैं पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संतोष लाड बोलते हैं कि इंडस का पानी क्यों बंद किया जा रहा है। सैफुद्दीन सोज और तारिक कर्रा कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत करो, उनके साथ टेबल पर बैठो। इनके अन्य नेता जो है पाकिस्तान से दोष हटाकर भारत पर ही दोष डालते हैं, हिंदुओं पर दोष डालते हैं, जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने। और कुछ तो इनके नेता जो पीड़ित हैं उन्हीं को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। विजय वड़त्तीवार कहते हैं कि हिंदू होने के लिए मारा है या धर्म देखकर मारा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। थिमापुर भी यही कहते हैं, जो कांग्रेस के नेता भी है, मंत्री भी है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सबसे पहले कांग्रेस का कलेक्टिव रिजॉल्व क्या है, कांग्रेस का क्या एग्जैक्टली स्टैंड है। ऑल पार्टी मीटिंग में राष्ट्र नीति की बात होगी, और ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर वोट बैंक नीति की बात होगी। तो पहले कांग्रेस पार्टी अपना कलेक्टिव रिजॉल्व पूरे देश को बताए। मोदी का सिर गायब दिखाया था, उसको रीट्वीट करते हुए फवाद हुसैन जो पाकिस्तानी नेता है, उन्होंने रीट्वीट किया है और कहा है कि गधे के सिर से सींग गायब हो गए। देखिए, अब ये स्पष्ट हो चुका है कि INC कांग्रेस पार्टी बन चुकी है PPP, पाकिस्तान परस्त पार्टी। और ये दोनों केवल एक ही स्क्रिप्ट और एक ही ज़ुबान नहीं बोलते, बल्कि इनकी कार्य संस्कृति, इनका कल्चर भी एक सा हो चुका है। जिस प्रकार से सर तन से जुदा करने की मानसिकता पाकिस्तान, उसके आतंकी और उसके कई सारे लोग
यूके की एम्बेसी में हमने देखा कि किस प्रकार का इशारा वहाँ के उनके एक ऑफिशियल ने किया था। वही कार्य संस्कृति, वही संस्कार आज उसका परिचय कांग्रेस पार्टी दे रही है और उसको सामने कोट ट्वीट करना, उसको प्रमोट करने का काम, कांग्रेस के इस विचार को आगे बढ़ाने का काम पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के नेता कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस के सिद्धरमैया का बयान, अखिलेश यादव जी और बाकी के जो इंडिया अलायंस के नेताओं का बयान पाकिस्तान की मीडिया में लगातार चल रहा है, तो एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस अब केवल पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं देती है, जैसे 26/11 में दिया, पुलवामा में दिया, समझौता में दिया, अब पहलगाम में भी दिया, गनमैन बोला है, आतंकी बोलने से कतरा रहे हैं, हिंदुओं पर दोष डाला है। कांग्रेस केवल इस्लामिक जिहाद पर लीपापोती नहीं करती जैसे उनके नेताओं ने किया, विजय वड़त्तीवार ने, पर अब कांग्रेस और पाकिस्तान लगभग प्रधानमंत्री के विषय में एक ही राय रखते हैं, सर तन से जुदा वाली मानसिकता। और देखिए कांग्रेस ने तो बार बार प्रधानमंत्री के विषय में क्या क्या नहीं बोला है कि कब्र खुदेगी मोदी की, हिटलर की मौत मरेगा, दफन कर देंगे। 150 से ज़्यादा गालियां और धमकियां देने का काम कांग्रेस ने किया है और अब पाकिस्तान उस पर ताली बजा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों के बाद से भारत सरकार एक्शन मोड में है। भारत में विदेशी नागरिकों और बांग्लादेशी अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में फ्लोरिडा नगर निगम एएमसी ने चंदोला झील के पास अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। नाओमी में नामांकन के नेता और कांग्रेस के समाजवादी नेता राहुल गांधी आज के एसोसिएट्स पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंटरमीडिएट सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। इस बीच राहुल गांधी लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए। पहलगाम में हमले के बाद भारत सरकार ने 5 बड़े कदम उठाए। पाकिस्तान के होश उड़ गए। अब पाकिस्तान को भी कुछ करना था। देश के आवाम को बताने के लिए तो उसने कर दिया। अपने एयर स्पेस को भारत के लिए बंद, पहले ही बदहाल आर्थिक स्थिति से गुजरने वाले पाकिस्तान का और नुकसान मोल लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलवामा हमले के बाद भी पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद किया था। उस वक्त पाकिस्तान को $100 मिलियन से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार भी पाकिस्तान को अपने इस फैसले से बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। भारतीय एरोस्पेस से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने वाले एयरक्राफ्ट अभी भी लगातार ऑपरेट कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने भारतीय रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट के लिए एयर स्पेस को बंद किया है, जबकि दूसरे देशों के यात्री विमान लगातार ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से कोई नो टाइम जारी नहीं किया गया, यानी भारत ने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के लिए पाबंदी नहीं लगी है। अभी एविएशन सेक्टर के जानकार हर्षवर्धन का कहना है कि पाकिस्तान की भारतीय एयर स्पेस से जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान न के बराबर है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एयर स्पेस को बंद करने से पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। बीदर के नौबाद में स्थित गवर्नमेंट फर्स्ट एड कॉलेज में जनपद उत्सव मनाया गया। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पत्रकार रवि भूसांडे पर हमला किए जाने की निंदा करते हुए कर्नाटक भीमसेना ने बीदर में शुरू किया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। हमारे लिए समय सीमित और लक्ष्य बड़े पहलगाम अटैक पर आक्रोश के बीच पीएम ने दिया गहरा संदेश। लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस बीजेपी के गौरव भाटिया ने पीएम मोदी पर गायब वाले तंज को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साइबेरिया में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का किया अनावरण। पाक ने बंद किया एयर स्पेस, भारतीय विमानों की नो एंट्री। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।